نشست میں ہم ہندوستان کے ایک اور جلیل قدر مغل بادشاہ کے بارے میں بات کریں گے۔ نام تھا جس کا نور الدین محمد جہانگیر۔ نور الدین محمد جہانگیر اکبر بادشاہ کا فرزند تھا۔ اکبر 26 سال تک لاولد رہا تھا، لہذا اولیاء اللہ کے مزارات کی ننگے پاؤں زیارت کرتا تھا، تو وہ شیخ سلیم چشتی کا بھی مرید تھا، ان سے دعا کی تھی۔ اور جب فرزند پیدا ہوا راجپوت رانی کے بدن سے، مریم زمانی کے، تو اس نے اس کا نام اپنے مرشد کے نام پہ، شیخ سلیم کے نام پہ سلیم رکھا، سلیم الدین رکھا۔ اس کی شہزادہ سلیم کی تعلیم تربیت اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر عالم عبد الرحیم خان خانہ کی زیر نگرانی ہوئی، جو کہ عربی، فارسی، ترکی، سنسکرت اور ہندی زبان کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب یہ 15 سال کا ہوا تو اپنے زمانے کے مطابق اس کی شادی الہ آباد کے راجہ بھگوان داس کی بیٹی سے ہوئی۔ ابتدائی عمر میں اس کو پہلے 10 ہزاری منصب عطا کیا گیا، پھر 12 ہزاری منصب کے عہدے میں پہنچا۔ اکبر نے اس کو کچھ ہدایت کی کہ وہ مرکز پہ رہ کر، دہلی میں رہ کر اس کی نیابت کرے تاکہ وہ کچھ باغیوں کو چلائے، لیکن بجائے کہ وہ یہ ایسا کرتا، وہ الہ آباد پہنچ گیا اپنے ننیال، اور وہاں جا کے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اب بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت پھیلانے والے وہی امراء تھے جو نوجوان بادشاہ کو بھڑکاتے رہتے تھے باپ کے ہی خلاف۔ اب اس کے آلریڈی اکبر بادشاہ کے 2 بیٹے مراد اور دانیال کثرت شراب نوشی سے ہلاک ہو چکے تھے۔ اس نے بڑی کوشش کی تھی کہ اپنے بچوں کو شراب نوشی سے بچا سکے، لیکن کامیاب نہ ہوا تھا۔ اس میں دانیال کو تو نظر بند کر دیا گیا تھا، لیکن محافظ خانے کا جو سپاہی تھا، وہ خود ہی بندوق کی نال میں شراب لا کے اس کو دیتا تھا۔ زنگ والی شراب پینے سے دانیال کی موت ہو گئی۔ تو اب اکبر بادشاہ کے پاس وارث یہی تھا۔ سلیم کی خطا معاف ہوئی، لیکن درباری سازشوں نے یہ کوشش کی خود اکبر کی آخری زندگی میں ہی کہ شہزادہ سلیم کی جگہ شہزادہ سلیم کے بیٹے خسرو کو بادشاہ بنا دیا جائے، لیکن یہ سازش کامیاب نہ ہو سکی کہ امراء کے 2 گروپ بن چکے تھے دربار میں۔ ایک گروپ جو تھا وہ شہزادہ خسرو کی سپورٹ کر رہا تھا، جس کی عمر صرف 17 سال تھی، لیکن وہ اپنے دادا کی طرح الحاد اور تشکیک کی بنیادوں پہ تھا۔ وہ اپنے دادا کی طرح ملد تھا، جبکہ جہانگیر جو تھا یہ حضرت مجدد الف ثانی جیسے بزرگوں کے زیر اثر رہ کر اسلام کی دوبارہ نشاط ثانیہ چاہتا تھا کہ ہندوستان میں دوبارہ اسلام کی اشاعت ہو، نہ کہ کفر الحاد ہو۔ بہرحال اکبر بادشاہ نے خود ہی اس کو شاہی پگڑی پہنائی، بستر مرگ پہ لٹے ہوئے، اور کمر میں شمشیر ہمایوں باندھی۔ اس کی بادشاہت کا اعلان ہوا اکبر بادشاہ کے انتقال کر جانے کے بعد۔ تو اس نے ایک بہت بڑی زنجیر عدل بھی بنوائی تھی، جس کو لوگ بجا کر 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی داد رسی حاصل کر سکتے تھے۔ اس نے اصلاحات نافذ کی۔ اصلاحات میں یہ تھا کہ
जागीरें भी बख्शी गई जो वेलफेयर के काम कर रहे थे। शराब नोशी और तंबाकू नशे भी पाबंदी आज की गई कि वो इसको खुद वो शराबी था लेकिन पसंद नहीं करता था कि ये हिंदुस्तान में इसकी वबा फैले। सजाओं के तौर पे इसने अज़ा काटने की सज़ा को बंद किया, रेज़नी वगैरह के ख़ात्मे के लिए इक़दाम किए। तो मुख्तलिफ इसने इस्लाहात की। इसने बड़ा अच्छा स्टेप लिया अपनी हुकूमत को तरक्की देने का और पॉपुलर करने का। इधर शहज़ादा खुसरो ने जब साजिश कामयाब हो गई, नाकाम हो गई, तो अपने 350 साथियों सिपाहियों के साथ वो दादा की कब्र पे फतह पढ़ने के बहाने पंजाब पहुंच गया ताकि वहाँ जाके बगावत का ऐलान करे। और भी बागी उसको हज़ारों तादाद में मिल गए। तारन के मुकाम पे सिख गुरु अर्जन ने शहज़ादा खुसरो की बगावत की कामयाबी के लिए दुआ मांगी और माली इमदाद भी की। शाही फौज ने ताक़ुब किया। खुसरो ने लड़ना चाहा लेकिन फिर मशवरा दिया गया कि या तो काबुल चला जाए, पनाह ले, काबुल में जाकर ख़ुद को मुस्तकिम करे, या बंगाल जाके मुस्तकिम करे। आखिर फैसला ये हुआ कि काबुल जाया जाए, तो गिरफ्तार हो गया। जहांगीर खुद पंजाब पहुंचा। मौजूदा माल रोड पे दफ्तरों के साथ साथ सुलियां भी बना के रखी गई। हज़ारों की तादाद में इसके साथियों को, नज़दीकी साथियों को जिन्होंने बगावत में हिस्सा लिया था, उनको टिकटकी पे चढ़ा दिया गया। कई दिनों तक उनकी लाशें हवा में लटकती रहीं। खुद शहज़ादा खुसरो के साथ ये किया गया कि उसको फ़कीराना लिबास पहना के जंजीरों में जकड़ के उसको मीलों दौड़ाया गया, भगाया गया। इसी तरह गुरु अर्जन को जो पकड़ा गया, तो गुरु अर्जन को सजाए मौत दी और उसकी जायदाद भी जब्त हुई। लेकिन सिख तारीख नवे से इसको मजहबी रंग देते हैं, हालांकि उस दौर में मजहबी रंग इतना चढ़ा न था। जैसे अकबर बादशाह मुगल आजम था, अलहाद खुद ही अपना मजहब बना लिया, दीन इलाही, तो उसमें मजहबी तासुब नहीं था। खालिसतन सियासी फैसले थे कि बगावत को क्यों हवा दी गई, बागी शहजादे का क्यों साथ किया गया। इतना कुछ होने के बावजूद भी शहजादा खुसरो ने दोबारा कोशिश की। बगावत की भनक बादशाह को मिल गई जहांगीर को। उसने इस दफ़ा सियासत गालिब आ गई मोहब्बत पे, शफकत पिदरी पे, और गर्म सुलाखें करके इसकी आंखों में फेर दी गई। बाद शफकत पिदरी ने जोश मारा तो आंखों का इलाज कराया। एक आंख तो मुकम्मल ज़ाय हो गई, एक आंख में जुज़वी रोशनी थी। उसने शहज़ादा खुसरो का चार्ज शहज़ादा खुर्रम के हवाले किया, जो बाद में शाहजहां का कहलाया। ये कहते हैं, और काफ़ी इसके शवाहिद मौजूद हैं, कि शहज़ादा खुर्रम ने इसको अपने रास्ते से हटा दिया था जहर देके, ताकि मुस्तक़बिल में ये इसके मुकाबले में खड़ा ना हो सके, तख्त का दावेदार ना हो सके। क्योंकि बाबर ने अफ़गानों से हिंदुस्तान लिया था बहलुल लोदी से, लेकिन अफ़गानों ने दिल से शिकस्त तस्लीम न की थी, ना बाबर के ज़माने में ना अकबर के ज़माने में। उन्होंने वो खामोशी इख्तियार कर ली थी, लेकिन वो इताअत कबूल न की थी। जहांगीर ने अफ़गानों के लिए अच्छा पॉलिसी इख्तियार की। उसने इनको सख्ती से और फिर नरमी से मुती किया और उनको अपने दरबार में बड़े बड़े मनासिब दिए, जो अकबर बादशाह ने नहीं दिए, जहांगीर ने दिए। और फिर अफ़गानों ने दिल जान से फिर
मुगलों का साथ दे दिया। राजपूताना पूरा मती हो चुका था अकबर के दौर में ही, लेकिन वहाँ का एक राणा था, राणा प्रताप सिंह, जिसने अकबर बादशाह का भी हाकमियत तस्लीम न की थी। जहांगीर ने यहाँ भी वही पॉलिसी रखी, सख्ती, नरमी, सख्ती, आखिरकार वो भी मुती हो गया। तो इसकी राजपूताना पॉलिसी और अफगान पॉलिसी कामयाब रही। इसी तरह पंजाब में कांगड़ा का एक मुकाम था जहाँ का किला जो था सिर्फ इस्लामी तारीख में महमूद गजनवी ने फतह किया था। इसके बाद ये आने वाले दिल्ली सल्तनत के मुसलमान बादशाहों के हाथ से निकल गया था। अकबर के ज़माने में भी फतह ना हुआ था। इसने जहांगीर ने शहजादा खुर्रम को लश्कर दे के भेजा। यहाँ शहजादा खुर्रम ने कांगड़ा पे कब्जा करके पहली दफ़ा मुगलों के देर तसल्लुत लाया। लेकिन साउथ इंडिया में, दक्कन में जहांगीर की पॉलिसी चल न सकी। वहाँ पे हबशी निजात मलिक अंबर बैठा था, जो बंगाल के शाहों का वफादार था, लड़ाका जांबाज था। उसने मराठा सिपाहियों को रहज़नों की तरह लड़ना सिखाया, भागना सिखाया और मुगलों से लड़ते रहे। कभी मुगलों को आर्जिश कर देते, कभी हार जाते, कभी मुती हो जाते, कभी ताबन भर देते। इसी सर्दी गर्मी में ये चलती रही जहांगीर के आखिरी दौर तक। और दक्कन इनकी तरह पूरी तरह काबू न आया। दक्कन पॉलिसी जहांगीर की इतनी कामयाब न थी। ईरान का एक आदमी जो तिजारत में खसारे में आ चुका था, मिर्ज़ा गयास, वो वहाँ से किस्मत आजमाने के लिए अपने बाल बच्चों के साथ दिल्ली चल पड़ा कि वहाँ जाके कोई नौकरी तलाश करे। दिल्ली दरबार में से कोई नौकरी मिल गई। जब वो आ रहा था तो कंधार के मुकाम पे उसकी एक बच्ची पैदा हुई जिसने दुनिया में बड़ा नाम पैदा किया, नूर जहां, जो बाद में मलका नूर जहां के नाम से मशहूर है। जब वो जवान हुई तो उसने उसकी शादी एक और ईरानी सरदार से कर दी। क्योंकि उस सरदार ने शिकार में एक शेर को हलाक किया था अपने हाथों से, उसके लिए वो शेर अफगन कहलाता था। शेर अफगन से शादी कर दी। शेर अफगन बंगाल में ही था कि वहाँ बगावत को कुचलने के दौरान उसको वो मारा गया। तो उसकी बेवा और बेटी नूरजहां और नूरजहां की बेटी लाडली बेगम को दिल्ली भेज दिया गया। यहाँ आने के कोई 4 साल के बाद मीना बाजार में जो औरतों का लगा हुआ था, शाही उमरा और शाही ख़ानदान को औरतें देखती थी, वहाँ उसने जब नूरजहां को देखा तो उसने उसकी खूबसूरती, हुस्न और अंदाज गुफ्तगू वगैरह, जो कहते हैं शुआ नाज, जो देखकर ये बड़ा मुतासिर हुआ। उसने नूरजहां से शादी कर ली। नूरजहां की उम्र उस वक्त 34 साल थी, 34 ईयर ओल्ड। बाद में नूरजहां ने जहांगीर की जिंदगी पे बहुत असर रखा, हत्ता कि अक्सर फरामीन नूरजहां के नाम से जारी होने लगे। गो उसका कोई हुकूमत में ओहदा न था सिवाय फर्स्ट लेडी के, मलका के। उसके नाम से मोहरें भी बन गई, शाही मोहरें, और सिक्का पे भी उसका नाम जारी हो गया। जहांगीर खुद भी कहता था अपने आखिरी अय्याम में कि मैंने 1 किलो शराब और आध किलो गोश्त के बाद नूरजहां को हिंदुस्तान का तख्त बख्श दिया। नूरजहां खुद भी शिकार की दिलदादा थी और इसने खुद भी शिकार के दौरान शेर हिलाक किया था। नूरजहां एक अच्छी आलमा थी, शायरा थी, लेकिन जहांगीर के वफात के बाद वो अपने शौहर के कब्र पर
18 साल तक मुजावरी करती रही। उसने नूरजहां ने काफ़ी चीज़ें दरबार में इंट्रोड्यूस की, जो मसलन फैशन, मलबूसात, खस की चट्टी उस ज़माने में इसका था, इत्र गुलाब, गुलाब का अर्क गुलाब, खुशबू, और चांदनी का फर्श, ये सारी इजाज़ात जो थी मलका नूरजहां की थी। मलका नूरजहां ने सबसे पहले तो खुर्रम को आगे बढ़ाया था दरबारी हिकमत अमलियों में, हुकूमत के निज़ाम में ये इनका अच्छा ग्रुप जा रहा था। लेकिन जब इसने लाडली बेगम अपनी बेटी की शादी जहांगीर के छोटे बेटे शहरयार से की, तो उसकी तवज्जो अब खुर्रम से ज़्यादा शहरयार की तरफ हो गई थी। शहरयार हुस्न इत्तेफाक से नालायक था, उसको नाशुदनी बादशाह कहते थे, उमरा भी उससे राजी न थे। तो अब वो चाहती थी कि ये बादशाह बने, बजाय शाहजहां के बनने के शहरयार बने। अब इसमें उसने साजिशें करनी शुरू कर दी और जहांगीर को शाहजहां के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। शाहजहां जिसने इतनी जंगें जीत कर बादशाह को दी थी, इसी आपस के साजिशों का नतीजा ये निकला कि कंधार, जिसको ना बाबर ने अपने हाथों दिया था, ना हुमायूं ने, ना अकबर ने, जहांगीर के दौर आते तक, क्योंकि शाहजहां जो था वो तैयार ना हुआ कि नूरजहां की शरात पे जाके कंधार में कब्जा करे और ईरानी बादशाह शाह अब्बास सफ़ी से लड़े। शाह अब्बास सब इसी इनके शाह जहांगीर की गफलत की वजह से शाह अब्बास ने कंधार पे हमला कर लिया। वो बाद में उसने राज़ी करने की जहांगीर को बहुत कोशिश की, लेकिन जहांगीर नाराज़ ही रहा। इधर शाहजहां ने बगावत करने की कोशिश की, लेकिन जहांगीर ने शाही लश्कर से शिकस्त खा गया। एक वक्त पे इसकी कसरत शराब नोशी तो इतनी बढ़ गई थी कि सिपह सालार ने जहांगीर को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन मलका नूरजहां ने उसे छुड़ाना चाहा तो उसको भी कैद कर दिया। लेकिन चूंकि नूरजहां की अक्ल और दानिश और साजिशों से बहुत घबराता था, उसको खतरे का एहसास हुआ कहीं मैं हिलाक ना हो जाऊं, तो इन सब को छोड़कर, शाही काजियों को छोड़कर खुद शाहजहां के पास भाग के चला गया, वहां पनाह गज़ीन हुआ। कश्मीर में तातीलात का अयाम गुजारने के बाद वापसी पे जहांगीर का इंतकाल हो गया, लाहौर में दफन हुआ, वहाँ आज भी उसका मकबरा मौजूद है। जहांगीर फारसी अदब का एक अच्छा राइटर भी था। वो उसको तारीख़ और जोग्राफी से भी बहुत दिलचस्पी थी, बागात लगाने का उसको शौक़ था, और कश्मीर से तो इसको इश्क था। फ़न मुसव्वरी में भी इसने कमाल हासिल कर रखा था, खुद अच्छा मुसव्वर था और अपने दौर के और मुसव्वरों की तस्वीरों में इम्ताज़ कर सकता था, बता सकता था ये फ़लाने मुसव्वर ने बनाई है और ये फ़लाने ने। हत्ता कि अगर कई मुसव्वर मिलकर एक तस्वीर बनाते थे तो ये इंडिकेट कर देता था ये पोर्शन उस मुसव्वर ने बनाया है और ये पोर्शन उस मुसव्वर ने। इतना इसकी महारत थी। नंगे पाँव अपने बाप के मज़ार पे दुआ के लिए जाया करता था, फातिहा के लिए। सलहट आसाम में ऐसा हुआ था कि उस दौर में एक कारोबार चल पड़ा था, छोटे बच्चों को मुखन्नस बना दिया जाता था, ख्वाजा सलाह। इस कारोबार को इसने बड़ी सख्ती से रोका जहांगीर ने। वो खुद शराब पीता था, लेकिन मुल्क में शराब नोशी या तंबाकू को इसने रोकने की बहुत हद तक कोशिश की। ज़ाती तौर पे सूफिया कराम की सोहबत और हिंदू जोगियों की सोहबत को पसंद करता था। खुद हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी से मुतासिर रहा, उनके ग्रुप के ही रहा, लेकिन हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी को सियासत की खातिर उनको कैद व बंद में भी रखा।
इसी तरह गुरु अर्जन से वो उसको मजहबी कोई मुनाफकत न थी, लेकिन उनको सजाए मौत दिलवाई थी। इसने तुज़क में ही लिखा था कि आज मैं फलानी मुकाम में पहुंचा हूँ, यहाँ गुरु अर्जन है जिसने अपनी तालीमात से हिंदू मुसलमानों के तबकात को बुराई के राह पे डाल दिया है। तो मैंने इसको, इसमें सिर्फ हिंदू नहीं है जो इसके मुक़ल्लिद हैं, बल्कि मुसलमान भी हैं, और मैंने सख्ती से गुरु अर्जन के खिलाफ एक्शन लिया है। 15 साल की उम्र में इसकी शादी हुई थी। 15 साल की उम्र में ही इसने शराब नोशी की इब्तिदा की। 24 साल की उम्र में आते आते ये रोज़ाना 20 तेज़ शराब की जाम पी जाता था, जिसकी वजह से सेहत बहुत मुतासिर हुई और इसका इंतकाल शराब नोशी की वजह से हुआ। बहरहाल ये हकीकत है कि हिंदुस्तान पे कब्ज़ा मुसलमानों का या अब मुग़लों का कब्ज़ा जहांगीर के वक्त में मुकम्मल हुआ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।